students, how are you? I hope you all are fine and doing your work regularly at your home. You all know that there is again lockdown due to COVID-19. So whatever work you are getting, please complete it and learn also, है ना? And pay attention on your study. Okay? Now welcome back in our science class. This is class 4 of chapter 1st. Okay? Chapter 1st is nutrition in plants. Okay? In our previous videos we have already discussed about autotrophic nutrition मीन्स ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में. ओके, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन था जिसमें अपना भोजन वो खुद बनाते हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मीन्स कई प्लांट्स ऐसे होते हैं, कई नॉन ग्रीन प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं. ठीक है, वो दूसरे जो अदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स होते हैं उन पे भोजन के लिए डिपेंड होते हैं. ओके, देयर आर सो मेनी नॉन ग्रीन प्लांट्स. ओके, there are some non-green plants that do not have any chlorophyll. Such plants cannot prepare their own food. Besides, there are bacteria and some flowering plants that cannot synthesize their own food completely or partially. Partially. Then how do these plants get their nutrition? Like humans and animals, these plants also depend on the food prepared by other green plants or other animals. Such organisms are called heterotrophs. Okay, the term heterotrophs is coined from two words. ये वर्ड है हेट्रोट्रोपिक या हेट्रोट्रोप्स, टू वर्ड से मिलकर बना है. ठीक है, फर्स्ट इज हेट्रो और सेकंड इज ट्रोप्स. ओके, हेट्रो मीन्स डिफरेंट और ट्रोप्स मीन्स हो गया न्यूरिशमेंट. ठीक है, हम ऑटोट्रोप्स में डिस्कस कर चुके हैं. ट्रोप्स मीन्स होता है न्यूरिशमेंट, मीन्स न्यूट्रिशन लेना. ऑटो मीन्स अपने आप, मीन्स अपना पोषण स्वयं करना. एंड हेट्रोट्रोप्स मीन्स हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रोप्स मीन्स न्यूरिशमेंट. अलग अलग विभिन्न मोड से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना, है ना. अदर प्लांट से भी हो सकता है, अदर एनिमल से भी हो सकता है. Are you getting my point? Now pay attention on the board. Heterotrophic mode of nutrition. The mode of nutrition in which organisms depend on other plants or animals for their nutrition. Okay, वह मोड, न्यूट्रिशन का वह मोड जिसपे ऑर्गेनिज्म होता है वो डिपेंड रहता है अदर प्लांट्स पे या अदर एनिमल्स पे. ओके, ये डेफिनेशन लिखनी है आपको. हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इधर से आएगा ये. ठीक है, ये हेट्रोट्रोपिक जो वर्ड है या हेट्रोट्रोप्स है उसकी डिटेल है. ये तो आपको समझाने के लिए ये मैंने लिखा है. ओके, आगे देखो. हाउ मेनी मोड ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ओके, फर्स्ट इज पैरासाइट, मीन्स प्लांट्स को डिवाइड किया गया है. हेट्रोट्रोपिक जितने भी प्लांट्स हुए उनको डिवाइड किया गया है. कितने मोड के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे? 4. ओके, सो पे अटेंशन हियर. फर्स्ट इज पैरासाइटिक प्लांट्स, सेकंड सेप्रोफाइट्स, थर्ड इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड लास्ट सिम्बायोटिक प्लांट्स. ओके, ओके, फर्स्ट इज पैरासाइट प्लांट्स. The non-green plants which live and feed on other living organisms is called parasite plants. Means जो दूसरे plants पे रहते हैं उन्हीं से अपना भोजन obtain करते हैं, कहलाते हैं parasite plants. And the mode of nutrition is called parasitic nutrition. Okay, got my point? There are two types. Parasite plants पे two types के होते हैं. First is total parasite and second is partial parasite. Okay. And next is saprophytes. Okay, next is saprophytes. There are another type of heterotrophic nutrition by which non-green plants obtain their food from rotten or dead decaying organism. Okay, these plants are called saprophytes. Sapro means rotten and phyte means plant, means जो सड़े गले जानवरों से अपना भोजन obtain करते हैं, अपना nourishment करते हैं, कहलाते हैं सेप्रोफाइट्स प्लांट्स. ओके,
And next is insectivorous plants. Some plants like pitcher plant, Venus flytrap, hence plants eat insects. Okay, hence these plants are also called carnivorous plants. They are usually green in color and are capable of preparing their food by photosynthesis. However, they still trap and digest insect to meet their nitrogen requirements because the soil on which they grow lacks नाइट्रोजन. मीन्स ये ऐसे सॉइल में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स खाते हैं. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक प्लांट्स. Symbiotic plants. Okay beta, plants which live in association with other plants and share shelter and nutrients are called symbiotic plants. Okay. Another example of the symbiotic relationship is shown in rhizobium bacteria and leguminous plants like gram, peas, beans, pulses. Means जो जितने भी ये फलीदार पौधे होते हैं, दालें वगैरह, इनके जो रूट्स होती है उनमें नोडुल्स पाई जाती है. उनमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. अंडरस्टूड. चारों हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ये चारों टाइप समझ आ गए. चलो, ओके. नाउ फर्स्ट इज द ग्रुप्स ऑफ हेट्रोट्रोपिक मोड. Okay, now we will discuss briefly about heterotrophic mode of nutrition. First, the parasite plants. The non-green plants which live and feed on the other living organism are called parasite plants. ठीक है, अभी मैंने बता दिया था आपको. तो अब आपको ये डेफिनेशन अच्छी राइटिंग में लिखनी है, एक बार वापस से इनको रीड करना है. ओके. The non-green plants which live and feed on other living organism are called parasite plants and the mode of nutrition is called parasitic nutrition. ठीक है, ये जो प्लांट्स है वो तो कहलाए पैरासाइट प्लांट्स और जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो कहलाया पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Got my point? For example, dotted plant. Okay, now see this picture. This is parasite mechanism of dotted plant. Okay, the suckers sent out by the dotted plants into the phloem. Means phloem जो प्रिपेयर फूड होता है प्लांट का, वो प्रिपेयर फूड वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है. तो उसमें से ये क्या करते हैं? सक करते हैं न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, जाइलम है, फ्लोएम है. अंडरस्टूड. ओके. We have already told you that parasite plants have two types. There are two types of parasite plants. Means एक तो totally parasite, एक partial parasite. Totally means जो totally depend रहते हैं host पे, और partial means जो जिनमें green leaves तो होती हैं और वो water और minerals के लिए host पे depend होते हैं. चलो, complete हो गया parasite plants. Next is saprophytes plants. The non-green plants which obtain food from dead and decaying plants and animals called saprophytes plants. Means जो सड़े गले हुए जितने भी होते हैं, sapro means होता है rotten. Okay, rotten या decaying matter, उससे अपना nourishment obtain करते हैं, कहलाते हैं saprophytes plants and this mode of nutrition कहलाता है saprophytic nutrition. Okay, for example, mushrooms and yeast etc. This picture, this is mushroom. They release digestive juices on the decaying matter or animal excreta. These juices break down the complex compounds into simple solutions and absorbable nutrients. Okay. Okay, now next is insectivorous plants. Some plants eat insects to meet their nitrogen requirement because the soil on which they grow लैक्स नाइट्रोजन. लैक्स मीन्स होता है बेटा कमी, किसी भी चीज की कमी होना. ठीक है, वे प्लांट जो इंसेक्ट्स खाते हैं अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. ओके, फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट वीनस फ्लाइट्रेप. सी दिस पिक्चर, दिस इज पिचर प्लांट. द
The leaf of pitcher plant is modified to form a pitcher-like structure. The tip of the leaf is modified in the form of a lid which can open or close the mouth of the pitcher. The inner layer of pitcher is hairy. Once an insect enters the pitcher, it gets trapped into the hair. जैसे ही कोई इंसेक्ट कीड़ा इसके देखो ऊपर देखो इस पिक्चर में इस तरह से इसके लीफ डिजाइन होती है. जैसे इंसेक्ट यहाँ पे आता है इनमें फंस जाता है और ये ऊपर से मुंह बंद हो जाता है. और उसके बाद द डाइजेस्टिव जूसेस secreted in the pitcher digest the insect. उसको जैसे ही अंदर बंद होता है इसको पिक्चर प्लांट डाइजेस्ट कर जाता है. नाउ नेक्स्ट मोड इज सिम्बायोटिक प्लांट्स. ओके, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं हम. 3 का डिस्कस हो गया है. अब नेक्स्ट है 4th इज सिम्बायोटिक प्लांट्स. ए बेनिफिशियल रिलेशनशिप इन विच ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर. मीन्स एक प्रॉफिट वाला रिलेशनशिप होता है जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म मिलकर रहते हैं एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स. और एक दूसरे का शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी. ओके, एल्गी क्या करती है? एल्गी का काम होता है इसमें ये रिलेशनशिप कहलाती है लाइकेन. एल्गी का काम होता है इसमें टू प्रिपेयर फूड. फूड प्रिपेयर मीन्स एल्गी फूड प्रिपेयर करती है एंड फंगी एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से. ठीक है, तो दोनों मिलके खाना बना लिया. अगर ये नहीं होगी तो ये फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगी और अगर ये नहीं होगी तो ये वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी. मीन्स दोनों को एक दूसरे की जरूरत है. एक दूसरे के बिना ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. दोनों को जरूरत है. दोनों मिलके फूड प्रिपेयर करते हैं. दोनों मिलके ही उसका यूज करते हैं. ये जो न्यूरिशमेंट की ये प्रोसेस है ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. ओके, सी दिस पिक्चर. दिस इज लाइकेंस एन एसोसिएशन बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एल्गी जो ऑटोट्रोप्स हैं एंड फंगी जो सेप्रोफाइट है. ओके, द ग्रीन एल्गी प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस and the fungi absorb water and minerals and supply into the algae. Okay, ये relation कहलाता है इनका lichens. Now see this picture. Another example of symbiotic relationship is in rhizobium bacteria and leguminous plants like gram, peas, beans, pulses. Rhizobium bacteria cannot make their own food. These bacteria live in the roots nodules of leguminous plants. They convert nitrogen gas from air into water-soluble nitrates, which are taken by these plants of their growth. In return, leguminous plants give food and shelter to rhizobium bacteria. इसका मतलब हुआ जो फलीदार पौधे होते हैं जिनकी रूट्स में नोडुल्स पाई जाती है, पीस, ग्राम एक्सेट्रा, इनमें जो राइजोबियम जीवाणु होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वाटर सोल्यूबल मिनरल्स में कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में, तो वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बदले में प्लांट्स उसको रहने के लिए शेल्टर और फूड प्रोवाइड करवाते हैं. ओके, आई थिंक इनफ फॉर टुडे. सो वॉच वीडियो केयरफुली, मेक प्रॉपर नोट्स एंड लर्न आल्सो. अबाउट रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स एंड हैव ए वंडरफुल डे.